Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be fine, safe, and protected with your families. Today, the topic of discussion is nomenclature of coordination compounds. Let's begin our lecture with a important quote of the day. That is the time management rule, two-step time management rule. As you people know that your vacations has started, so I want to remind you all that you have to make use of these vacations in productive way. Plan your day to achieve your goals and then keep to your plan. Make a schedule of what you need to do on weekly basis. Every day is the day when you can take actions and follow your plan of action. Students, try to increase your stamina of study as much as possible. One thing that you have to use your time in the productive way. There are many activities which waste a lot of time, so it's better to minimize those activities which waste your time. Beta, you are a student and you need to be concerned about your time. You should know the worth of time for you. Being a student, you should know the consequence of wasting time. So try to utilize your time in productive way. What I want from all of you is that you have to complete your lecture notebooks during this break, and you have to go through all the syllabus which we have done so far. Okay, let's start our lecture. In this slide, we will discuss about coordination compounds, types of coordination compounds, nomenclature rules for the coordination compounds, writing names of coordination complexes, examples with solution, writing formula of coordination complexes, examples with solution, and then your home assignment. Students, in our last lecture, we discussed coordination compounds. This is a very important property of transition elements, that they have the tendency to form complex compounds and coordination compounds. We have completed the basics of these complexes. As you know that there is a transition metal and ligands atom, molecule or ions which surrounds the transition metal, and they donate the electron pair to the central metal atom. Now we will proceed towards the nomenclature of coordination compounds, that how you are going to write the names of these complexes. There are four types of complexes: cationic complexes, anionic complexes, ionic complexes, and neutral complexes. Cationic complexes. As you know that the whatever is written in the square brackets is a complex part of the compound. So if the complex part of the compound is having positive charge, then it will be the cationic complexes. And if the complex part is having negative charge, if the coordination sphere is having negative charge, it will be anionic complexes. And if these coordination spheres or complex part is made is cation and anion, then this type of complex is known as ionic complexes, which contains both complex anion and complex cation. Neutral complexes have zero charge overall. They are neutral. A complex is a substance in which a metal atom or ion is associated with a group of neutral molecules or anions called ligands.
Ligands, you know, they are electron pair donors. Coordination compounds are neutral substances in which at least one ion is present as complex. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर कोई एक आयन एटलीस्ट होना चाहिए जो कॉम्प्लेक्स हो. Complex compounds are named according to the following rules given by IUPAC. IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. इन्होंने कुछ रूल्स डिज़ाइन किए हैं और हमने इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर उन रूल्स को फॉलो करके करना. सो व्हाट आर दोज रूल्स? Number 1, order of ions. As you know that there are cations and anions, and you have to write the name of the cation first and then the anion. इसमें इस चीज़ का आपने नहीं देखना कि कौन सी चीज़ कॉम्प्लेक्स पार्ट में है. There are some of the complexes in which we have a complex cation and a simple anion. There are some complexes in which we will be having complex anion and simple cation, and complex cation and simple anion and neutral. So whatsoever will be the case, you have to name the cation first and then the anion. For example, in this particular case, K4FeCN6, you have to name potassium first because potassium is the cation, and then you have to go towards the writing of this complex part. So कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जब आप एंटर हो जाते हैं तो उसमें आपके पास दो चीजें हैं, एक ट्रांजिशन मेटल और एक लिगेंड्स. सबसे पहले आपने नाम लिखते वक्त राइटिंग नेम्स यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द लिगेंड्स फर्स्ट. There are three categories of ligands. Anionic ligands depending upon the charge, anionic ligands, cationic ligands and neutral ligands. तो पहले मैं आपको इन सब की लिस्ट बताती चलूं. These are some of the anionic ligands. For anions that end in "ide", जैसे क्लोराइड इसकी एंडिंग "ide" पे हो रही है, और कुछ एनाइंस ऐसे हैं जिनकी एंडिंग "ate" पे होती है, लाइक सल्फेट, नाइट्रेट, एंड देयर आर सम कॉम्प्लेक्सेस विच एंड एट "ite", जैसे नाइट्राइट. दिस इज नाइट्राइट, सॉरी, करेक्टेड. "ite" को आपने "o" में चेंज कर देना है, "ate" को आपने "ato" में, और "ite" को "ito" में. लाइक इफ इट इज क्लोराइड तो आप इसको "ite" को "o" से रिप्लेस कर देंगे जब आप इसके लिगेंड का नाम लिखेंगे. Like it will be chloro. वैसे ये क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, लेकिन when it is acting as a ligand, you have to name it bromo, chloro, cyano and so on. हाइड्रोक्साइड का "ite" रिप्लेस कर देंगे आप "o" से, तो it will be hydroxo. Oxide will become oxo. Fluoride will become fluoro. Okay. Sulfate and nitrate and carbonate, they will get changed into carbonato, sulfato and nitrato. और ये जो "it" वाली एंडिंग वाले हैं ये "ito" में चेंज हो जाएंगे, लाइक सल्फाइट विल बी सल्फाइटो. सो हियर इज द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द कॉमन anionic ligands. You have to memorize their charges as well. You have to memorize their names as well. There are some of the anionic ligands which are missing in the list, like acetate से acetato, nitrate से nitrato. These two are the anionic ligands. Then comes the neutral ligands. Neutral ligands are called as such: water, ammonia, carbon monoxide and nitric oxide. When they act as ligand, they become, water will become aqua or echo, NH3 will become amine, CO is called carbonyl, NO is called nitrosyl. They are called neutral ligands because they are having no charge, zero charge. तो ये चार ही मोस्ट कॉमनली यूज होंगे आपके, और भी हैं काफ़ी सारे, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो आपके यूज होंगे वो यही 4 हैं, और आपने इन 4 के नेम्स को अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेना है. एंड कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट दे आर न्यूट्रल लिगेंड्स, दे आर हैविंग नो चार्ज.
Then positively charged ligands end in IUM, like hydrazinium, nitrosilium, ammonium. They are having +1 charge. Okay. As I have already told you that when you enter the coordination sphere, you have to write the names of the ligands first. Now the third rule is order of the ligands. अगर आपके पास एक ही कैटेगरी का कोई लिगेंड है तो फिर तो सिंपल है, लेकिन if you have different types of ligands, then you have to follow alphabetical order. क्या आपने उनको किस ऑर्डर में लिखना है? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स, इट इज हैविंग क्लोरो, ब्रोमो, सायानो, देन यू हैव टू फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर while naming those complexes. अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब आप लिखेंगे तो आपने जो प्रीफिक्सेस यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर 2 क्लोरो तो आप डाइक्लोरो लिखेंगे, इफ देयर आर 3 क्लोरो तो आप ट्राइक्लोरो लिखेंगे. तो आपने ये डी और टी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं देखना, आपने लिगेंड के नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसको देखना है. मोर देन वन सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स. In order to indicate more than one ligands, use prefixes such as di for 2, tri for 3, tetra for 4, penta for 5 and hexa for 6. If you have 6 cyano groups, you will write hexacyano. If you have 5 chloro, so then you will write 5 pentachloro. Termination of the name of the metal. ये वाला रूल तब फॉलो होगा जब आपका कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिवली चार्ज है. यानी सबसे पहले वाले, जब आप कॉम्प्लेक्स आपको कोई भी दिया जाएगा नेमिंग के लिए, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आप डिटरमिन कर लेंगे कि आपके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट केटाइन में है या कॉम्प्लेक्स पार्ट एनाइन में है. इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज द नेगेटिवली चार्ज्ड, तो फिर आपने उस सूरत में मेटल का जो नेम है उसकी एंडिंग पे 8 लगाना है. लाइक सिर्फ एल्यूमिनियम नहीं लिखेंगे बल्कि आप इसको एल्यूमिनेट करेंगे. क्रोमियम नहीं लिखेंगे, क्रोमेट. कोबाल्ट विल चेंज इनटू कोबाल्टेट. कॉपर विल चेंज इनटू क्यूप्रेट. गोल्ड का लैटिन नेम ऑरम होता है तो उससे ऑरेट. आयरन का फेरम होता है लैटिन नेम, तो फेरेट. मैंगनीज विल चेंज इनटू मैंगनेट. निकल विल चेंज इनटू निकलेट. प्लैटिनम विल बिकम प्लैटिनेट एंड जिंक विल बिकम जिंकेट. This rule is only followed if the complex sign is negatively charged. Like consider this example. In this particular case, the potassium is a simple cation and whatever is written in the coordination sphere is A9. So in this particular case, I will not write iron simple. I will write, instead of iron, I will write ferrate. तो क्या हमने अभी रूल्स डिस्कस किए हैं सो फार कि सबसे पहले आपने केटाइन का नाम लिखना है, वेदर इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स. इस पर्टिकुलर केस में आपके पास सिंपल केटाइन सबसे पहले है, तो आप पोटेशियम पहले लिखेंगे और फिर आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर को टच करेंगे. लेकिन देयर विल बी सम कॉम्प्लेक्सेस जिसमें सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पोर्शन लिखा होगा और एंड पे कोई A9 लिखा हुआ होगा. दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. तो उस सूरत में सबसे पहले आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंप्लीट करेंगे और फिर आप A9 का नाम लिखेंगे. यानी दिस इज द रूल दैट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द केटाइन फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ द A9. उसके बाद जब आप इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहुंचेंगे तो यू विल बी हैविंग ट्रांजिशन मेटल एंड सम लिगेंड्स. यहाँ पर तो एक ही कैटेगरी का लिगेंड है सायानो, बट देयर विल बी कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पर 2, 3, 4 डिफरेंट तरह के लिगेंड्स होंगे. तो उस सूरत में यू विल फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर. किस लिगेंड को पहले लिखना है, आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है. अगर आपके पास किसी एक तरह का लिगेंड है 2 टाइम्स, जैसे यहाँ पर सायानो 6 टाइम्स है तो यू विल राइट हेक्सासायानो. अगर यहाँ पर 2 टाइम्स होता तो डाइसायानो, ट्राइसायानो इन केस ऑफ 3 एंड सो ऑन. उसके बाद आपने मेटल का नाम लिखना है. मेटल का नाम 8 में कन्वर्ट हो जाएगा इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज हैविंग नेगेटिव चार्ज. एंड फाइनली यू हैव टू राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल एटम इन पैरेंथेसिस. इन ब्रैकेट्स में आपने रोमन्स में कोऑर्डिनेशन इसका ट्रांजिशन एलिमेंट का
चार्ज लिखना है. It can be positive, it can be negative even, it can be zero even. Whatever it is, you have to write it over here. The oxidation number of metal ion. The oxidation number of the metal ion is represented by Roman numeral in parenthesis following the name of the metal. ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है मेटल आयन के नेम के बाद पैरेंथेसिस में और रोमन्स में, और ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, नेगेटिव में भी कोई नंबर हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है. Then comes the case when there are more than one polydentate ligands. Polydentate ligands मैंने आपको बताया था कि जो एक ही मॉलिक्यूल डिफरेंट 2 या 3 या 4 से एट अ टाइम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता हो, वो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कहलाते हैं. और उनके लिए आपने ये डाई ट्राई टेट्रा वाली वर्डिंग यूज़ नहीं करनी, बल्कि अगर आपने डाई लगाना है तो आप बेस लगाएंगे, ट्राई के बजाय आप ट्रेस लगाएंगे, टेट्रा के बजाय आप टेट्रा केस, पेंटा के लिए पेंटा केस एंड सो ऑन. मीन्स ये कि ये 2 लिस्ट आपको दी हुई है, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी. लिस्ट ए आप तब फॉलो करेंगे जब आपके पास सिंपल, जो मैंने आपको फर्स्ट केस में सारे एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल लिगेंड्स बताए हैं, उनके केस में आप ये ए वाली लिस्ट फॉलो करेंगे. और अगर आपके पास कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड आ जाता है, जैसे इथिलीन डायमीन है या ईडीटीए है, तो उस सूरत में आपने बजाय डाई ट्राई टेट्रा लगाने के बेस, ट्रेस, टेट्रा केस और पेंटा केस यूज करेंगे. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल कोट की हुई है, ये जो ई एन की एब्रीविएशन है, स्मॉल ई और स्मॉल एन, ये इथिलीन डायमीन के लिए यूज होती है. बजाय इसके कि हम इथिलीन डायमीन का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखें, तो इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम, इन ऑर्डर टू सेव योर स्पेस, आप सिंपल उसकी एब्रीविएशन लिखते हैं ई एन. अब यहाँ पर ई एन होल ट्वाइस है, मीन्स कि जो इथिलीन डायमीन है वो 2 टाइम्स है. अब वैसे भी इसके अंदर डाई आ रहा है, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन, दैट्स वाई उन्होंने आपको सजेस्ट किया है कि आप दोबारा डाई ना लगाएं, डाई इथिलीन डायमीन ना करें, बल्कि उसको बिस इथिलीन डायमीन कर दें. इसका नाम अब उन्होंने कैसे लिखा है, आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेशन सफेयर में ही है सब कुछ, और ये केटाइन ही है, तो ऑफ कोर्स आपने इसको ही पहले स्टार्ट करना है. आपने लिगेंड्स 2 तरह के आपको गिवन है, वन इज क्लोरो एंड द अदर वन इज इथिलीन डायमीन. तो आप देखें कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा आ रहा है. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो सबसे पहले है, सी कम्स बिफोर ई. तो आपने क्या करना है, डाई क्लोरो पहले लिखना है. फिर आपको जैसे मैंने बताया कि पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा, तो उसके लिए आपने डाई ट्राई की वर्डिंग यूज नहीं करनी, बल्कि इंस्टेड ऑफ डाई यू विल यूज बिस ओवर हियर. ठीक है, बिस लगा के फिर आपने ब्रैकेट्स लगानी है. पॉलीडेंटेट लिगेंड का नाम आपने पूरा ब्रैकेट में लिखना है, इथिलीन डायमीन, और फिर आपका आ जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट, और उसके बाद आपने रोमन्स में पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो आपने इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है. ओके, अब ये चीज, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे 3 पता चला, ये भी अभी हम देख लेते हैं. यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे करती चलूं कि कोबाल्ट आपने लिखा है, यू हैव नॉट रिटन कोबाल्टेट ओवर हियर. वाई? क्योंकि उसकी कंडीशन मैंने आपको बताई है कि 8 की एंडिंग सिर्फ तब आएगी जब आपका कोऑर्डिनेशन सफेयर के ऊपर ओवरऑल यहाँ पर क्या चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज. यहाँ पर तो पॉजिटिव है, तो अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा तो उस केस में आपके पास जो है वो मेटल एटम के नेम के साथ 8 की एंडिंग आएगी. तो यहाँ पर सिंपल आप कोबाल्ट लिखेंगे. ओके, अब ये आपको पूरी समरी, जो अभी मैंने आपको सारे रूल्स बताए हैं, ये उनकी समरी है. यहाँ पर 2 एग्जांपल्स हैं जो मैं आपसे शेयर करती चलूँ. ये एक कॉम्प्लेक्स है और ये नीचे वाला एक कॉम्प्लेक्स है. सबसे पहले हम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को प्रोसीड करते हैं. सबसे पहला रूल क्या था, लेट्स रिकॉल, यू हैव टू नेम द केटाइन फर्स्ट एंड देन एनाइन. तो केटाइन इसमें ये कॉम्प्लेक्स पार्ट वाला केटाइन, और ये जो 2 क्लोरीन है ये एनाइन है. तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ अ कॉम्प्लेक्स केटाइन एंड अ सिंपल एनाइन. चलें, अब सबसे पहले हम केटाइन का नाम लिखेंगे. मींस कि कोऑर्डिनेशन सफेयर को सबसे पहले आपने टच करना है, और एंड पे आप सिंपल जो एनाइन का नाम है क्लोराइड वो लिख देंगे. अब यहाँ पर जब हम कोऑर्डिनेशन सफेयर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या रूल था, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द लिगेंड्स इन द
अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पर एक क्लोरो है और यहाँ पर ये अमीन है। गर्ल्स कीप इन माइंड कि यहाँ अंदर जो कोऑर्डिनेशन सफेयर के अंदर जो क्लोरीन है इसको आपने क्लोराइड नहीं कहना। ये मैं आपको शुरू की स्लाइड्स में बता चुकी हूँ कि क्लोराइड जब लिगेंड बनता है तो उसका नाम क्लोरो होता है और अमोनिया नहीं इसे कहना, इसे आपने अमीन कहना। ठीक है, तो आप सबसे पहले, क्योंकि ए कम्स बिफोर सी इन अल्फाबेट्स, तो आपने अमीन का नाम पहले लिखना है। कितने अमीन्स हैं? 5, तो आप लिखेंगे पेंटा अमीन, देन यू विल राइट क्लोरो, और फिर उसके बाद आपका ट्रांजिशन मेटल आ जाएगा कोबाल्ट, और फिर आपने रोमन्स में आप ये जगह छोड़ दें, अंदर आपने अभी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, और एंड पे आप A9 का नाम लिखेंगे क्लोराइड। अब आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज 3, तो उसकी थोड़ी सी वर्डिंग हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका कोऑर्डिनेशन सफेयर पूरे पे चार्ज है आपने वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको पता है कि जो क्लोराइड है सिंपल, उसके ऊपर कितना चार्ज होता है? -1। एज देयर आर 2 क्लोराइड्स, तो कितना हो गया? यहां पर कितना हो जाएगा? क्लोराइड पर -2 चार्ज हो जाएगा। अब इस पूरे को न्यूट्रल करने के लिए कोऑर्डिनेशन सफेयर के ऊपर क्या, पूरे के ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा? +2। ये -2 है और ये क्या है? इस पूरे के ऊपर चार्ज क्या आ गया? +2। अब आपने ऐसा करना है कि अंदर चार्ज लिगेंड्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सबसे पहले मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड्स में सारे लिगेंड्स के ऊपर चार्जेस क्लियर कर दिए थे। लिगेंड्स को आप चार्जेस देंगे, उसके बाद आपने देखना है कि कोबाल्ट पर कितना चार्ज आएगा कि ओवरऑल रिजल्टेंट हमारा +2 आए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन सफेयर के ऊपर ओवरऑल क्या चार्ज है? +2। तो आपको पता है कि अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? 0। यहां पर जो ये वाला क्लोरीन है, क्लोरो, जो कि लिगेंड है, इसके ये एक है यहां पर, तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? -1। अब आप मुझे बताएं कि कोबाल्ट पर क्या चार्ज आएगा कि मैं उसमें से -1 करूं तो ओवरऑल +2 आए। तो यू विल गेट टू नो कि मैम +3 आएगा इस पे। तो +3 एंड -1, इसका रिजल्टेंट +2 आएगा। तो दैट्स हाउ वी कम टू नो दैट कोबाल्ट हैज 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपने यहां पर 3 लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर तो 2 क्लोरीन थे, तो यहाँ पर आपने क्यों नहीं डाइक्लोराइड लिखा है क्या? तो बेटा ये चीज़ आप जहन में रखें कि ये जो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये सारे प्रीफिक्सेस आपको बताए हैं, दे आर ओनली मेंट फॉर लिगेंड्स। ये सिर्फ लिगेंड्स के लिए हैं, ये किसी और, ये इस तरीके से A9 के लिए जो नंबर है वो नहीं है, उसको आपने उसके साथ कोई नंबर नहीं लगाना। आपने कुछ नहीं कहना इसको डाइक्लोराइड या ट्राइक्लोराइड, आपने सिंपल A9 का नाम लिखना है क्लोराइड। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, हाउ विल यू कम टू नो कि ये क्लोरीन जो है ये लिगेंड नहीं है और ये क्लोरो लिगेंड है? बेटा कोऑर्डिनेशन सफेयर के जो अंदर होगा वो लिगेंड है और जो कोऑर्डिनेशन सफेयर के बाद होगा वो लिगेंड नहीं है। तो एज these 2 क्लोरीन एटम्स दे आर outside the coordination sphere, so they are not ligands. It is simple A9. नेक्स्ट आप आ जाए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स के ऊपर। वही वाला फर्स्ट रूल आप अप्लाई करेंगे, यू हैव टू नेम द केटाइन फर्स्ट। यहाँ पर सोडियम पहले आ रहा है, तो इसका मतलब है दिस सोडियम इज अ सिंपल केटाइन एंड दिस होल कॉम्प्लेक्स पार्ट इज A9। सिंपल चार्जेस अगर मैं इसके ऊपर दूं तो आपको पता चल रहा है कि ये जो सोडियम है इट इज हैविंग +1 चार्ज। तो यहाँ पर 2 सोडियम्स हैं, तो ये +1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 2। तो इस सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आ गया? +2। तो ये इसको न्यूट्रल करने के लिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स पार्ट पर क्या चार्ज आ जाएगा? -2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस -2 चार्ज को अंदर कोऑर्डिनेशन सफेयर पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। लिगेंड्स के ऊपर चार्जेस पहले आपने देने हैं और जो फिर मेटल एटम के ऊपर बनेगा वो आपने उसको असाइन करना है। तो लेट्स राइट द नेम।
सोडियम पहले लिखेंगे, और वही वाली बात बच्चों जो मैंने आपको बताया कि आपने डाई सोडियम नहीं लिखना, ये डाई ट्राई पेंटा टेट्रा ये सब कुछ जो है ये लिगेंड्स के लिए प्रीफिक्सेस हैं, दे आर नॉट मेंट फॉर केटाइंस और एनाइंस, तो सिंपल सोडियम आप इधर लिखेंगे। देन यू विल स्टार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जब आप पहुंचेंगे तो यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ द लिगेंड्स फर्स्ट। आपके पास यहाँ पर दो लिगेंड्स आ रहे हैं, दो तरह के लिगेंड्स आ रहे हैं, एक क्लोरो और एक ऑक्सो। तो आपने क्लोरो का पहले लिखना है क्योंकि C कम्स बिफोर O, तो टेट्रा क्लोरो एंड देन यू हैव टू राइट ऑक्सो एंड देन मोलिब्डेट। अब आप यहाँ पर नोट करें कि आप मोलिब्डेनम नहीं लिख रहे, ये MO स्टैंड्स फॉर मोलिब्डेनम, आप मोलिब्डेट लिख रहे हैं क्योंकि आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज है वो माइनस में आ रहा है। ये रूल हमने पढ़ा था कि व्हेन एवर द ट्रांजिशन मेटल इज कमिंग इन द एनायनिक पार्ट or if the complex part is having negative charge, in that case you have to add 8 after the transition metal atom name. Tetrachloro oxo molybdate and then parenthesis में आपने molybdenum का oxidation state लिखना है। molybdenum का oxidation state निकालने के लिए you know कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होगा -2 और यहाँ पर जो है 4 क्लोरोज हैं तो -4 क्लोरो पर हो जाएगा। तो मोलिब्डेनम पर क्या चार्ज आएगा, +4 आ जाएगा, -4 +4 कैंसिल हो जाएगा और ऑक्सो का चार्ज -2 इसके ऊपर अपीयर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका चार्ज लिखेंगे। यहाँ पर भी एक उन्होंने सिंपल वे में आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आप वो कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लाइक दिस। सबसे पहले आपने प्रीफिक्सेस लिखने के लिए, ये मैं आपको ब्रैकेट्स को जब आप ओपन करेंगे, ब्रैकेट्स वाले पोर्शन का जब आप नाम लिखेंगे उसमें क्या ऑर्डर फॉलो करेंगे वो बताऊंगी। प्रीफिक्स लिखना है इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ लिगेंड्स लाइक ड्राई डाई ट्राई टेट्रा पेंटा एंड सो ऑन। फिर आपने लिगेंड्स के नेम लिखने हैं, फिर आपने मेटल एटम का नाम लिखना है और फिर आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है इन रोमन न्यूमरल्स। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं टेक्स्ट की आपकी, जहां पर कॉम्प्लेक्स के साथ उसका नेम मेंशन्ड है। ये वाले जितने कॉम्प्लेक्सेस हैं जो ए कैटेगरी में लिखे हैं, इन सब में जो आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। आप यहाँ पर देखें कि सिंपल के टाइम सब में मेंशन्ड है, इसमें पोटेशियम सोडियम पोटेशियम सोडियम, और जो एनायनिक पार्ट है वो सब पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इन सब के मेटल एटम की एंडिंग पे 8 की एंडिंग आएगी, फेरेट मैंगनेट प्लैटिनेट एंड निकलेट। इसके अलावा आप इसको खुद ही सॉल्व करेंगे और टैली कर लेंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स पार्ट की नेमिंग करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, हेक्सासायानो के बाद मैंने गैप नहीं दिया, हेक्सासायानो फेरेट पूरा एक ही गो में लिखा है, पेंटा कार्बोनिल मैंगनेट ये पूरा एक ही गो में लिखा है, ठीक है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। यहां पर जो अब कॉम्प्लेक्स आयंस की जो एग्जांपल्स कोट की गई हैं बी कैटेगरी में, इसके अंदर द कॉम्प्लेक्स पोर्शन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, तो मेटल नेम एज इट इज आएगा लाइक नो कोबाल्टेट, आपने सिंपल कोबाल्ट करना है। पहले आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग करके फिर एंड पे क्लोराइड लिख देंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर की 7th वाले केस में क्लोराइड ऐड कर देंगे, सेम द केस इन 8 and 9। यहाँ पर कोई भी केटाइन एनाइन का चक्कर नहीं है, तो आपने सब कुछ इसी तरीके से टेट्रा कार्बोनिल निकल और 0 कर देना है। पहले आपने इस पूरे का नाम लिखना है, देन यू हैव टू ऐड सल्फेट एंड सो ऑन, इसकी भी आपने नेमिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो सॉल्यूशंस के साथ गिवन है, लाइक मैंने थोड़ी एक्सप्लेनेशन उसके साथ लिखी है। इसका नाम है ट्राइअमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। इसमें भी थोड़ा सा हम अच्छा, अब सबसे पहले आप इसके ऊपर चार्जेस देंगे, लाइक यहाँ पर हो जाएगा, मैं ओवरऑल ही लिख देती हूँ -3, तो इस पूरे के ऊपर क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स न्यूट्रल करने के लिए कॉम्प्लेक्स पार्ट पे +3। अब आपने इस +3 को डिस्ट्रीब्यूट करना है अंदर, पहले लिगेंड्स पे चार्जेस देने हैं
और जो ट्रांजिशन एलिमेंट पे बन रहा होगा वो आपने देना है। आपको पता है कि वाटर एंड अमोनिया, एक्वा एंड अमीन, दे बोथ आर न्यूट्रल लिगेंड्स एंड दे पोजेस जीरो चार्ज। तो यहाँ पर मैंने जीरो चार्ज लिख दिया। अब ये जो +3 चार्ज है ये किसका है? अब क्रोमियम का है। तो इसका मतलब है क्रोमियम इज हैविंग +3 चार्ज। यहाँ पर आप लिखेंगे, अब आपने जब ट्रांजिशन ये स्टार्ट किया कोऑर्डिनेशन से फिर, तो 2 लिगेंड्स हैं एक्वा एंड अमीन, तो अमीन विल कम फर्स्ट, और आपने ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम, ब्रैकेट में लिखेंगे 3 एंड देन क्लोराइड। तो यही सारी एक्सप्लेनेशन इसमें उन्होंने आपको बताई है। नेक्स्ट जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है वो ये है, इसमें भी आपने यही काम कर लेना है। वैसे तो इट्स बेटर कि आप -1 करके और फिर इसको क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करें, ताकि आपको आइडिया हो कि एक ब्रोमीन पर -1 चार्ज है, तो देयर आर 3 ब्रोमीन्स, तो ये -3 हो जाएगा, और पूरे कॉम्प्लेक्स पोर्शन पे क्या चार्ज आ जाएगा? +3। अब आपने इस +3 चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है अंदर। लिगेंड्स आपके पास एक अमोनिया है जिसका चार्ज 0 है, और एक आपके पास है क्लोरो जिसका चार्ज आप क्या लिखेंगे? -1। तो अब आप मुझे बताएं कि प्लैटिनम पे क्या चार्ज बनेगा कि हम उससे -1 करें तो +3 आए? ऑफ कोर्स 4 बनेगा। तो आपने इसका क्या नाम लिखना है? पेंटा अमीन, क्लोरो, प्लैटिनम, 4, और एंड पे लिख देंगे ब्रोमाइड, नॉट ट्राई ब्रोमाइड, इट्स ब्रोमाइड। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स जिसमें हमारे पास जो लिगेंड है दैट इज इथिलीन डाइअमीन। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप पॉलीडेंटेट लिगेंड यूज़ करेंगे तो उसमें आपने डाई नहीं यूज़ करना, आपने 2, ये इथिलीन डाइअमीन है यहाँ पर, तो आपने इसके बजाय बिस यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ डाई। तो आप सबसे पहले लिखेंगे क्लोरो, डाई क्लोरो, बिस, और ब्रैकेट लगा के पूरा लिगेंड का नाम लिखेंगे, इथिलीन डाइअमीन, ब्रैकेट्स क्लोज, एंड देन प्लैटिनम 4 क्लोराइड। इसमें भी आप इसी तरह से देख लें कि यहाँ पर -2 आ जाएगा 2 क्लोरीन्स पर, इस पूरे पे +2 आ जाएगा। इथिलीन डाइअमीन इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो आप इसको इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, निकल को निकलेट करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर भी इसी तरीके से है कि ये सोडियम 1 पर +1 चार्ज है, तो देयर आर 2 सोडियम्स। तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स पार्ट पे क्या चार्ज आ जाएगा? सॉरी, -2 है ये। यहाँ पर -2 आएगा, गलत लिखा गया है, -2। ओके, आगे भी इसी तरीके से कॉम्प्लेक्सेस लिखे हुए हैं और उनके नेम्स और उनके साथ उनके सॉल्यूशंस मेंशन्ड। यहाँ पर जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है 7th, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास केटाइन है अमोनियम, और फिर ये कॉम्प्लेक्स पार्ट पूरा A9 है। तो हमारे पास सबसे पहले आप लिखेंगे अमोनियम। अब यहाँ पर देखें डाई अमोनियम नहीं लिखना, आपने सिंपल अमोनियम। और अब आप इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को डील करेंगे। 2 लिगेंड्स हैं, एक एक्वा और एक ऑक्सलेटो, तो आपने लिखना है डाई एक्वा बिस ऑक्सलेटो। डाई ऑक्सलेटो नहीं करना क्योंकि ऑक्सलेटो इज ऑल्सो अ पॉलीडेंटेट लिगेंड। और फिर आपने इसका निकलेट करना है, और 4 जो आप निकालेंगे निकल पे दैट विल बी 2। अच्छा, अभी तक जो हमने रिहर्सल की है दैट वाज राइटिंग द नेम्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब आपको मैं इससे वाइस वर्सा काम बताने लगी हूँ कि आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के नेम गिवन होंगे और उससे आप फॉर्मूला राइटिंग कैसे करेंगे। तो ये थोड़ी सी इसमें डिफरेंस है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे अब हम।
The formula of the coordination complex is written in different order than its name. The chemical symbol of the metal central is written first. यानी सबसे पहले आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में सबसे पहले ट्रांजिशन मेटल लिखना है. The ligands are written next. उसके बाद ligands लिखने हैं और ligands वहाँ पर हम alphabetical order follow कर रहे थे. यहाँ पर जब आपने फॉर्मूला राइटिंग करनी है तो आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखना बल्कि इनायनिक लिगेंड को फर्स्ट लिखना है और फिर न्यूट्रल लिगेंड्स लिखने हैं. एंड सपोज इफ यू हैव टू टाइप्स ऑफ इनायनिक लिगेंड्स लाइक क्लोरो भी है, फ्लोरो भी है, तो फिर आप उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे. जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है आप उसको फर्स्ट लिखेंगे एंड देन बाद में. जब आपके लिगेंड्स कंप्लीट हो जाएंगे आपने ये भी देखना है कि अगर कोई आपके पास डाई है, ट्राई है, तो वो आप लगाएंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर. फिर आपने चार्ज कैलकुलेट करके वो भी लिखना है. इसके बाद जैसे ये है आपके पास एग्जाम्पल टेट्राफ्लोरोक्रोमियम 6 क्लोराइड, ये आपके पास है. अब यहाँ पर देखें इस क्लोराइड के साथ 2 आना है. जब आप इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, ये यहाँ पर मेंशन नहीं है. अब कैसे पता चलेगा आपको कि आपने इसके साथ 2 लगाना है? कि आपने पहले वो फॉलो करनी है, रूल्स फॉलो करने हैं कि सबसे पहले आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है. नेम के अंदर आपको ट्रांजिशन मेटल बताया हुआ है क्रोमियम, तो आपने क्रोमियम लिखना है. इसके बाद आपके पास उन्होंने बताया कि फ्लोरीन है. How many fluorines are there? How many fluoro are there? 4. तो आपने 4 लगा दिया. ब्रैकेट्स क्लोज करें. थोड़े गैप के बाद मैं यहां पर लिखती हूं क्लोराइड Cl -1. इसका तो आपको पता है कि जो एक क्लोराइड है उस पर -1 चार्ज होता है. अब यहां पर आप चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैलकुलेट करेंगे. कैसे? कि आपको उन्होंने क्रोमियम का चार्ज बता दिए. यहां पर क्रोमियम का चार्ज क्या है? +6. फ्लोरो एक के ऊपर -1 है साइन. यहां पर 4 फ्लोरोज हैं तो ऑफ कोर्स -4 हो जाएगा. तो ओवरऑल क्या चार्ज बनेगा आपके पास? +6 -4, ये बन जाएगा +2. अब आपने पढ़ी हुई है फॉर्मूला राइटिंग, ये केटाइन है, ये एनाइन है. जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका जो ओवरऑल चार्ज है वो इधर आ जाएगा और इसका ओवरऑल चार्ज इधर आ जाएगा. यानी ये वाला चार्ज इधर अपीयर होगा और जो इसके ऊपर चार्ज जो भी आ रहा है वो आपका इधर अपीयर होगा. तो अब आप इसका जब फॉर्मूला राइटिंग करेंगे तो ये यही चीज़ बन जाएगी. CrF4 और Cl के साथ ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा. तो आपने जब फॉर्मूला राइटिंग करनी है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पहले आपने कॉम्प्लेक्स जो भी केटाइन है या एनाइन है उसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऊपर चार्ज अलग लिखना है. एनाइन या केटाइन जो भी है वो अलग लिखना है और फिर इस तरह से क्रॉस करके आपने इनके जो नंबर्स हैं वो ऑपोजिट साइड पर लेकर जाने हैं. कुछ एग्जांपल्स मैं आपसे शेयर करूंगी. अमीन टेट्रा एक्वा क्रोमियम 2, इसकी अगर आपने राइटिंग करनी है तो सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ट्रांजिशन एलिमेंट लिखा, देन वाटर 4, अमोनिया, और फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्लोज कर दें. और ये हमने किस ऑर्डर में लिखी हैं? वही जो आपको पहले न्यूट्रल लिगेंड्स एनायनिक लिगेंड्स पहले लिखने और फिर न्यूट्रल लिखने हैं. तो एनायनिक यहाँ पर नहीं है, बोथ आर न्यूट्रल लिगेंड्स, तो फिर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे. अब यहाँ पर जो है ऊपर चार्ज आपने निकालना है. 0 0 यहाँ पर चार्ज होगा और क्रोमियम का जो +2 चार्ज है वो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अपीयर होगा. इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अमीन सल्फेटो क्रोमियम 2. इसका आप भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्रोमियम लिखेंगे पहले, फिर SO4, फिर अमीन. SO4 पहले आएगा क्योंकि वो एनायनिक लिगेंड है और फिर आपने न्यूट्रल लिगेंड को लिखना है. इसके बाद आपको पता है कि क्रोमियम के ऊपर चार्ज +2 है, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है आपको. तो सल्फेटो एक के ऊपर चार्ज -2 होता है, तो ये अंदर ही न्यूट्रल हो जाएगा और ओवरऑल कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं आएगा. ये 2 आपने खुद से ट्राई करनी है और इनकी आंसर्स आपको यहाँ पर मेंशन्ड है.
तो अगर कोई डिफ़िकल्टी हुई तो यू कैन कंसल्ट मी. Now finally your home assignment. Determine the oxidation number for each of the transition metal atoms, the charge of each cation and the charge of each anion in these compounds. यहाँ पर यानी आपने सबसे पहले तो जितने ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, जैसे फर्स्ट केस में वेनेडियम है, सेकंड केस में कोबाल्ट है, फिर ये मैंगनीज़ है, फिर ये निकल है, इनका इसका कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर बताना है. फिर आपने ये बताना है कि हर केटाइन पे क्या चार्ज है. यहाँ फर्स्ट केस में ये कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर वाला केटाइन है, सेकंड केस में ये अमोनियम केटाइन है, थर्ड में पोटेशियम एंड देन निकल. फिर आपने एनाइन पे चार्ज बताना है कि नाइट्रेट पे कितना है और इस तरह. तो ये आप सारी चीज़ें इस तरह से कर लेंगे. इट्स सो सिंपल. देन यू हैव टू राइट द फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग. ये रोमन्स में काउंटिंग है तो इसको काइंडली ठीक कर लीजिएगा. अच्छा, पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट 3, सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट 3, पेंटा एक्वा ब्रोमो मैंगनीज 3 सल्फेट, हेक्सा अमीन क्रोमियम 3 नाइट्रेट, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सोक्रोमेट. फिर आपके पास ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनकी नेमिंग आपने करनी है. तो दिस इज़ योर असाइनमेंट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. Take care of yourselves. Thank you.